If I am resourceful enough now, I've done my hard work. When my kids need me, when my boys need me, now I'm there for them. Right. They both play cricket. I play with them. I go out with them. So वो मैंने अगर कहीं ना कहीं हार्ड वर्क कर लिया है, उस टाइम पे जब वो बहुत छोटे भी थे तो थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड हुआ, लेकिन हुआ. लेकिन आज वो जब बड़े हो रहे हैं, जब उनको एक फादर से सीखना है, आई एम देयर फॉर देम. रियल सक्सेस वुड बी टू बी रिसोर्सफुल, सो दैट जो चीज़ आपने करनी है आपके पास उसका टाइम हो. मेरे पास सोने का टाइम हो, मेरे पास अगर मुझे कुछ डेज वर्क नहीं करना उसका टाइम हो, मेरे पास लोगों की हेल्प करने का, मेरे पास कोई हेल्प के लिए आता है, क्या मैं केपेबल हूँ वो हेल्प करने के लिए कि नहीं. सो दिस इज़ व्हाट आई फील, यू नो, is the real meaning of being successful, as you can say, and very few people are successful. Rolling, lights, camera, action. Yes. Thank you so much, sir, हमारे podcast पे आने के लिए. Thank you, Rishabh. It's really nice to be invited. Thank you so much. And when you called me and asked me to be over here, it was really nice because it's nice to see you grow up as a man now. Thank you so much. I've seen you as a small kid playing cricket. Yes. So it's wonderful. Yes, and sir. it's really, you know, humbling experience to be here. Yes, thank you so much, sir. It is my pleasure. And the reason I wanted to have you on my podcast was there's so many things कि जो हमारी ऑडियंस है वो आपसे सीख सकते हैं. आई रिमेंबर कि जब हम पहले मिले थे, आई यूज टू लुक अप टू यू सो मच. जैसे आप फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं, एंड आई रिमेंबर आपने कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बताई थी उस टाइम पे. आई वाज इन माय +1 +2, तो मुझे एक्चुअली में बहुत इम्पैक्ट करी, and it has made me who I am right now. And those things which I told you were sounded very different. It sounded very different. That nobody would say someone like that at that point of time. Right. Yes. But I feel कि मतलब you know, you can express yourself best when you get a choice to do what you can do. Exactly. And it takes some time in life to fully understand what you like. Exactly. There is no crime in changing what you like after a certain period of time. You never know when you are going to, you know, find gold digging a mine. It might take 10 years, 20 years, 30 years. But pursuing what you do and not being in a rat race or not following a pattern is absolutely all right. Exactly. Yes. If you want to be very successful in life, if you want to be different than other people, if you want to grow big, then of course you can't be doing what other people are doing. Exactly. That's what I feel. Right. तो मैं एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ पॉडकास्ट सुनने वालों को जिनको नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली हुआ था. तो आई वाज गोइंग थ्रू दिस फेज जहाँ पे आई हैड टेकन साइंस एंड आई डिडंट न्यू व्हाट टू डू. तो आई रिमेंबर भैया घर पे आए थे एंड वी वर प्लेइंग क्रिकेट. सो ही टोल्ड मी दिस थिंग कि यार वो कर जिसमें तुझे खुशी मिल रही है. आज से 2 साल बाद 5 साल बाद ये जो तेरे ग्रेड्स हैं इट वोंट मैटर एट ऑल. या एंड दैट ओनली हैपेंड 2 years डाउन द लाइन. आई एम लाइक यार कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, वो नहीं पड़ा कैसे भी मार्क्स है. एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी यू डूइंग मॉडलिंग, एक्टिंग, you know, your dad also grooming you very well. And the best thing is that कहीं ना कहीं वो चीज़ मैंने आपको जब बताई थी और आप अच्छा कर रहे हैं तो मुझे भी सक्सेसफुल फील होता है. that seeing you coming out nice and pursuing your dreams, I also feel nice that. अभी जैसे हम रिसेंटली जब जिम में मिले थे तो मेरे को वो सब चीज़ें रिकॉल हो गई कि आपने ये सब चीज़ें मुझे बताई थी उस टाइम पे. एक्चुअली हेल्प. Absolutely, yes. ओके. तो इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग का जो सबसे पहला सवाल है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में इन अ ब्रीफ मैनर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को समझाएं. So mostly my profession is centered around making people being better versions of their selves in terms of how they look in the mirror. Okay. And I'm working with fillers, Botox, you know, facelifts, and trying to give someone that extra bit of confidence, extra bit of, you know, power to go and face the world. Okay. And one might think that, oh, it's a very superficial thing. But I feel that with these treatments, sometimes somebody who has a smaller jaw, for example, and we make a nice, you know, normal, nice jaw, the kind of mental strength they get, the kind of confidence they get, that confidence
would have taken probably 8 to 10 more years to come out. Okay, they start feeling not shy. Right. You know, they start socializing more, going out more, speaking out more, Right. pursuing their dreams in a different sort of, with a different mindset. Right. So this is what I do. You know, this is, yes, in nutshell. तो आपका इंटरेस्ट कैसे बना कि that you want to pursue this only? Actually, it was just by an accident. I used to work a lot with lasers, you know, laser surgeries and all. जी जी जी. And I had gone to meet someone in US, a doctor, and discuss about education with laser and, you know, laser production also from a business point of view. And उनके clinic पे जब मैं मतलब I went and stayed with him and he took me to his clinic and so there was a separate section where aesthetics was there. Okay. So I was sitting there and I was looking how people are coming. It's not feeling like a patient is coming. It's feeling like friends are coming. They're feeling happy. It's a happy surrounding. You see how in clinics people come when they are sick, and it's sort of gloomy. There's a environment जो होता है ना बहुत tense होता है. Tensed है ना? You're afraid and there is, but that was different because there were patients coming for follow-ups. They were very happy. They were smiling and they were excited to see a little bit better version of themselves. So that sort of, you know, made me realize that this is a good thing, like to make someone, to be in a happy space from the beginning and take someone to a much better place. Right. So yes. That was the reason कि आपने ये start करा. हाँ मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगा कि you know it's for me. It's for you. Okay. तो मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा. Tell us briefly about your childhood. The reason I'm asking this is कि जब हम किसी के childhood के बारे में समझते हैं, let it be yours or mine, तो हमें personality traits पता लग जाते हैं. Right. तो that's why मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ. हाँ जी. So ऐसा था कि बचपन से जब से मुझे याद है, मतलब I have been a fan of cricket. ठीक है, और मतलब I remember class 3rd और 4th की मेरे को बात याद है. टेस्ट मैच जब होते थे तो किसी दिन मैं स्कूल से छुट्टी ले लेता था मैच देखने के लिए. टेस्ट मैच के लिए? टेस्ट मैच because टेस्ट मैचेस see if you are a serious cricketer, yes, so you understand the value of test matches because you know you get to play long and you know you get to see your favorite batsman Sachin Tendulkar play a long innings, you know. Right. So तब से मुझे इंटरेस्ट बना और क्लास 4th से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था इन अ प्रोफेशनल अकेडमी. चंडीगढ़ में सेक्टर 16 क्रिकेट स्टेडियम है. सो 4th क्लास से लेके क्लास 10th तक तो मैं रोज गया हूँ. Okay. अगर बारिश होती थी तब भी जाता था, संडे था तब भी जाते थे, यू नो. Right. And I was captain of Chandigarh team, cricket team, captain of under 16 and under 19 Chandigarh cricket team also. So कहीं ना कहीं my childhood, and I was a good student also. I would like study well and get good marks also. I remember I used to come 2nd or 3rd in class. Okay. And in class 10th I came 10th because I had gone for a national tournament which was right before the board exams. Okay. But I'm very lucky that I got to play at that point of time. Right. और मैंने इतनी चीज़ें सीखी क्रिकेट से कि मैं मतलब जैसे छोटे बचपन में ही मैंने इतना कुछ सीख लिया, लाइक एंड सबकॉन्शियसली सीख लिया. मतलब ऐसे नहीं आपका ब्रेन तो उतना ही मैच्योर होता है ना. Right. एंड द बेस्ट थिंग विच आई कैन से राइट नाउ एंड वील टॉक अबाउट इट लेटर इन सम अदर पॉडकास्ट इज दैट क्रिकेट से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली हर तरह के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के फ्रेंड्स बनाने की. बिकॉज गेम में कोई फाइनेंशियल या कोई ये नहीं होता है, यू नो. जो अच्छा खेलता है वो होता है. हाँ, सब लोग इकट्ठे खेलते हैं. सो किसी के फादर ढाबा चलाते थे, किसी के फादर लेबर थे, किसी के फादर पॉलिटिशियन थे, है ना. सो उस चीज़ की वजह से आई हैड अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ. मतलब सब लोग फ्रेंड्स थे और कभी ऐसा नहीं लगा बिकॉज यू नो आई स्टिल रिमेंबर कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में शायद अभी भी होता है दैट पीपल ट्राई टू कैटेगराइज देयर किड्स की नहीं जी नहीं ये इंटेलिजेंट या पढ़े लिखे पेरेंट्स के बच्चे हैं, इनके साथ ही रहना है. बट कहीं ना कहीं उस चीज़ में आप ना थोड़ा रियलिटी से अलग हो जाते हो. आई बीइंग एबल टू डील विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल नाउ इज अ गिफ्ट दैट आई गॉट इन माई चाइल्डहुड विच वॉज
from the game. Right. And there are so many other things, but we can talk about it later on. Yes. Obviously. Okay, so जैसे आप बता रहे हो 4th से 10th तक you were 12th तक 10th तक तो मैं रेगुलरली कर रहा था, फिर 11th 12th में I had taken up medical to be a doctor because my dad is a doctor. Okay. So उस पे मैं रोज नहीं जा सकता था, but I used to still play. Okay. Yes. And प्रोफेशनली खेलते थे? मतलब प्रोफेशनली तो रणजी ट्रॉफी होता है, बट अंडर 19 तक मैं खेला हूँ, कूच बिहार भी खेला हूँ, यू नो अंडर 19 स्टेट से भी खेला हूँ, बट दैट टॉपिक इज फॉर अनदर डे. यस. यस. सो चाइल्डहुड से मेरा प्रीडोमिनेंस उस तरह रहा है, एंड आई वाज गुड एट स्टडीज. आई वाज अ गुड स्टूडेंट लाइक फॉर द एंटायर टाइम, कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट. नहीं, कॉलेज में नहीं, कॉलेज में तो लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ते थे. कॉलेज में थोड़ा सा पढ़ाई से ध्यान कम हुआ था. Okay. लेकिन प्रोफेशनली बिकॉज यू नो हमारे ऐसा होता है कि फर्स्ट 2 years तो बिल्कुल थियोरेटिकल होता है, एंड नेक्स्ट जो ईयर्स होते हैं वो क्लिनिकल वर्क होता है. तो क्लिनिकल वर्क भी मतलब जो मुझे अच्छा लगता था मैं बहुत अच्छा करता था. अच्छा. जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लाइक यू नो आई वाज वेरी वेरी एवरेज इन दैट. But I was a good student all through, otherwise. But you cannot learn life by just being a good student. Okay. So you have to be a little bit naughty also. Okay. So that is good advice. Yes, okay. yes. तो आपका क्या मानना है colleges के regarding? Is it? I think मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि थोड़ा सा college का हमारा system change होना चाहिए. Obviously. And what I've started realizing after COVID is that nobody needs to go every day to school or college. I think हमें अब आगे आने वाले टाइम में थोड़ा सा, you see, I'll just give you a very small example. कि imagine कि बच्चों को स्कूल छोड़ने में और लेके आने में कितने resources लगते हैं, and वो सारा वीक थक जाते हैं. You know, they'll go to school, पढ़ना सारा टाइम, then अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना. अब आप ये सोचो कि किसी बच्चे ने क्रिकेट की बात ही कर लेते हैं, क्रिकेटर बनना है. सो स्कूल के टाइम में पढ़ाई के साथ, ट्यूशन के साथ, ड्राइंग्स करना, एक्स्ट्रा करिकुलर करना, तो कहीं ना कहीं हम इनजस्टिस नहीं कर रहे कि वो क्रिकेट के लिए तो लाइक 1 or 2 hours ही दे पा रहा है, जबकि वो स्टेज है कि उसका ब्रेन सबसे ज्यादा केपेबल है टू लर्न द क्वालिटीज of being a cricketer. Exactly. Because there is a stage when you're growing, it's called as neuroplasticity. Right. उस स्टेज में आप ज़्यादा चीज़ें लर्न करते हो. Okay. So I feel कि maybe 3 days a week भी हो सकता है schooling, और medical colleges वगैरह वो वहाँ आपको रोज जाना पड़ेगा, because being a doctor you have to accept the challenges and work every day. Right. But बाकी colleges जहाँ पे आपका direct practically इतना interaction नहीं है, I think we can make life easy for kids. Right. And more interactive for kids. Maybe grading system हम किसी और separate way से लें, maybe उनको हम practical examples दें. And we are coming to realize that. Right. बहुत सारे लोग अब conventional degrees करके they find it very difficult to get a job or you know, so you have to be a street smart person. Exactly. और उसमें yes, स्कूल में नहीं सिखाते ऐसी सब चीज़ें. स्कूल में तो आपको देखो, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ. As an adult, अगर मैं काम करता हूँ, मुझे इनकम टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, मुझे प्रॉपर इंडिया के लॉज पता होने चाहिए, रीजनेबल, नॉट लाइक अदरवाइज आई विल बी अ लॉयर ऑफ कोर्स, बट एक सॉर्ट ऑफ प्री लॉ भी मुझे पता होना चाहिए बेसिक चीज़ों को लेके. मुझे अपने राइट्स क्लियरली पता होने चाहिए, मुझे सोसाइटी में मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो पता होना चाहिए. ये चीज़ें कोई सिखाता ही नहीं है. यू नो, पीपल आर जस्ट यू नो bookworm and you know trying to learn those things, but कहीं ना कहीं सिलेबस में ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो प्रैक्टिकली आगे लाइफ में जाके मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए. राइट. जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, और सोशल आता ही नहीं आता है. अब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको इनकम टैक्स का पता होना चाहिए, आपको अदर टैक्सेस का पता होना चाहिए, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए. Exactly. हमें ऐसा क्यों होता है कि कुछ हो जाता है तो हमें लॉ पता लगता है. हाँ. राइट. पहले नहीं पता लगता. हाँ. और you'll find like if somebody like you see लाइफ में कितने circumstances होते हैं और अचानक से कई चीज़ें हो जाती हैं. So at least उस मोमेंट पे मुझे मेरे ब्रेन में ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं ऐसे एक्ट करूँ या ऐसे एक्ट करूँ इस मोमेंट के ऊपर. ट्रैफिक रूल्स के बारे में क्लासेस होना चाहिए. हाउ डू पीपल जस्ट एक्सपेक्ट कि आप यू नो, आई नो देयर आर टेस्ट्स एंड ऑल, बट व्हाई नॉट टीच देम टू द किड्स. एग्जैक्टली.
so that they are responsible citizens. And then if they make wrong choices, then they should be punished or fined for that. जैसे आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करी, मैंने ना बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट सुने हैं इसके रिगार्डिंग. तो जैसे ये कहा जाता है कि आपका जो ब्रेन है इट इज एवर इवॉल्विंग. कुछ ना कुछ सीखो तो न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं, डेवलप होते हैं. तो अगर किसी इंसान को अपना डिसिप्लिन का मसल बिल्ड करना है, जैसे हम जिम जाते हैं, वहाँ पे बाइसेप के लिए बाइसेप कर्ल्स करते हैं, तो डिसिप्लिन को आप न्यूरोप्लास्टिसिटी से कैसे बता सकते हैं? सी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बात बताता हूँ. आवर बॉडी वांट्स टू नॉट वर्क, वांट्स टू रिलैक्स. हमें हैबिट पड़ गई है ऐसी, है ना. सो कोई भी चीज़ में अच्छा करने के लिए, किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करने के लिए, मुझे बॉडी को अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में लेके जाना पड़ेगा. और मेरी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट विल एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर माई ग्रोथ. राइट. सो टू कीप माई बॉडी इन चेक सो दैट इट बिहेव्स वेल, आई हैव टू हैव डिसिप्लिन. और वो डिसिप्लिन भी ब्रेन ही लेके आता है, वो आपके माइंड से ही आता है. और आपके माइंड को ही अच्छा करता है. सो माइंड कहीं ना कहीं माइंड को पता है कि उसको इम्प्रूव करने के लिए, चाहे बॉडी को इम्प्रूव करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है. या आप किसी को फॉलो करते हैं, किसी को अपना मेंटोर बनाते हैं, जैसे कोई ट्रेनर को आप हेल्प लेते हैं या किसी डॉक्टर की हेल्प लेते हैं फॉर एग्जांपल. सो डिसिप्लिन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में. हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ योर बॉडी. एंड इफ यू विल नॉट गेट इट, then the body will slowly you'll age faster. I will give you an example now. I had a back problem. I play cricket now also. And वो डिस्क हो गया and काफ़ी डॉक्टर्स ने बोला आप रेस्ट करो. I rested for 2-3 months without playing. फिर भी थोड़ा थोड़ा था. And then I was getting restless. Because I'm in a habit of playing cricket. और मैं जिम काफ़ी साल नहीं किया बीच में. And I was playing cricket. It was going very well. My body was needing that kind of stimulus. वो तो मिल नहीं रहा था because exercise नहीं हो रहा था. Then and imagine, it's very sad that I tell you that जो योगा है वो मैंने स्वीडन में जाके, because there is a cryo pack there, जो मुझे जानते हैं अच्छे से, and he suggested me to do yoga and he fixed my back also. तो मैंने वहाँ जाके first time योगा किया अभी recently. And I'm a big fan now. और मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ अपनी कंट्री में क्यों नहीं किया. वहाँ तो योगा, हम तो उस कंट्री से हैं, right? So कई बार ऐसे ही होता है that sometimes some problems are there and then you understand the value of being a disciplined person. So वो मैंने ठीक किया. उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू किया, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया थोड़ा, सो दैट मैं आगे टाइम तक खेलता रहूं. नहीं तो मैं नहीं खेल पाऊंगा आगे. राइट. हेयर एंड देयर मसल पुल होता रहेगा, स्प्रेन आता रहेगा और ये प्रॉब्लम चलती रहेगी. और क्योंकि आप स्पोर्ट्समैन हो, आप दूर भी नहीं रह सकते. देन यू स्टार्ट फीलिंग नॉट नाइस. राइट. ओके, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके लिए. आपके जैसा अल्फा मैन कैसे बना जाए? I don't know if I'm an alpha male or not, but you are. The thing with me is that I'm a headstrong person. Okay. So you can call me like I am at one side very aggressive person, and at one side I'm an empath. I have gratitude towards life. I have a good heart. Like I want to help people. And on one side I'm aggressive in terms of my goals. In terms of achieving what I want to achieve. Right. And what I feel is कि ये जो term है, इसका मैं एक simple सा छोटा सा आपको आंसर देता हूँ. Make yourself capable enough. Okay. So that you can be useful for people who are close to you or people who cross your path. इतने capable हो जाओ, इतने resourceful हो जाओ और इस way में अपने आप को conduct करो कि जिससे भी आप मिलें या जो भी आपका पाथ क्रॉस करे, कहीं ना कहीं आप उसकी हेल्प कर सको. दिस इज व्हाट फॉर मी इज लीडिंग अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, कीपिंग योरसेल्फ मेंटली एंड फिजिकली फिट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आजकल हम फिजिकल फिटनेस की बात तो करते हैं, बट बहुत रेयर होता है. मतलब अब चलो ये शुरुआत हो गई है, मेंटल फिटनेस की भी बात करते हैं. देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ जो मैं चीज़ पर्सनली सोचता हूँ
जैसे फिजिकल फिटनेस है, व्हाट आई सी इज दैट सम पीपल आर डूइंग वेरी वेल इन द जिम फॉर एग्जांपल, बट यू नो वो फनेटिक भी हो जाते हैं इन द सेंस कि उन्हें कोई उसको प्रोफेशन तो बनाना नहीं है, बट वो उस पर टाइम ओवर वेस्ट करने लग पड़ते हैं. ओके. So for me, for example, if I want to play as a professional bodybuilder, फिर तो my way of working would be to get fanatic in it, like to eat, dream, you know, whatever in gym. But if I have to be fit and healthy, and that is not my primary source, will not be my primary source of making money or earning resources, then I will not overdo it. यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आती है, कई लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, कई लोग ओवरडू करते हैं. सो बैलेंस वाले लोग बहुत कम होते हैं. अब जैसे मैं हूँ, मैं उतना ही करता हूँ, उतना ही कर रहा हूँ जो मुझे एक्टिव रखे, और जो मुझे अल्टीमेटली मेरी प्रोफेशनल लाइफ में और सोशल लाइफ में हेल्प करे. सो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ है. और फिजिकल हेल्थ के साथ आई थिंक योगा और मेडिटेशन भी साथ में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेंटली हेल्दी पर्सन कुछ भी अचीव कर सकता है अगर वो फिजिकली भी वीक हो. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, देयर इज अ कोट, द स्मॉलेस्ट गाय इन द जिम said that he wants to be the biggest guy. Everybody laughed except the biggest guy. Oh. You understood? Right. That जो biggest guy है उसको पता है वो जर्नी smallest guy से क्या है. Every smallest guy will not become the biggest guy, but if he decides it, okay, this is also about life. Right. कि growth mindset होना चाहिए. Growth mindset होना चाहिए और सबका नहीं होता है. That is a very amazing. Yes. तो जैसे हम बैलेंस की बात कर रहे थे, तो हाउ डू यू फील कि वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करा जाता है? एंड ये क्वेश्चन ना मेरे कंसिस्टेंट रहता है, मैं ज़्यादातर लोगों से पूछता हूँ. देखो मैं आपको एक बात आता हूँ, कभी भी लाइफ में पूरा बैलेंस नहीं बन सकता है. हाँ, ठीक है. अब जैसे मेरे कुछ ईयर्स हैं जिसमें मुझे वर्क के लिए स्ट्रगल करना है, तो मुझे ज़्यादा टाइम उसको देना ही है. बैलेंस वुड बी, यस आई वुड ट्राई टू गिव एवरीथिंग टाइम, बट एवरी फेज ऑफ माई लाइफ डिमांड्स अ डिफरेंट मी. ओके. जब मैं अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ तो मेरा 90% एफर्ट अपने आप को बिल्ड करने में लग रहा है, प्रोफेशनली लग रहा है. एंड अगर मैं ये नहीं करता, फॉर एग्जांपल देखो कई लोग जो एवरेज लोग हैं या जो कॉमन लोग हैं, दिल से नहीं इतनी देर काम करना है, इतनी देर फैमिली का है, इतनी देर ये है. मैं कहीं ना कहीं वो उतना नहीं मानता हूँ. मुझे लगता है कि लाइफ में फेजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रिसोर्सफुल इनफ नाउ, आई हैव डन माई हार्ड वर्क, व्हेन माई किड्स नीड मी, व्हेन माई बॉयज नीड मी, now I'm there for them. Right. They both play cricket. I play with them. I go out with them. ठीक है. So वो मैंने अगर कहीं ना कहीं हार्ड वर्क कर लिया है, उस टाइम पे जब वो बहुत छोटे भी थे तो थोड़ा सा कम टाइम स्पेंड हुआ, लेकिन हुआ. लेकिन आज वो जब बड़े हो रहे हैं, जब उनको एक फादर से सीखना है, आई एम देयर फॉर देम. एग्जैक्टली. है ना. सो वो एक कुछ इंटरवल है जब वो मेरे से सीखेंगे, फिर वो आउट ग्रो कर जाएंगे, देन दे विल गो आउट. Right. Then they'll face the world. Exactly. So to make them capable of standing up and going for their rightful place in the world, this is the right time I have to be with them. Exactly. So मेरे को ये लगता है that एक specific किसी के लिए आप एक वो नहीं बना सकते हो exact कि यही work life है. I feel कि life में different phases होते हैं. Right. और हर फेज की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है. और हर फेज को कॉन्कर करना भी ज़रूरी है. है ना. एंड आई फील कि जैसे आपने ये बात बोली कि जैसे फेजेस होते हैं अलग अलग, जैसे क्या मानते हैं जो 20s की डिकेड होती है, वहाँ पे यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ, जैसे आप बोल रहे हैं. एब्सोल्युटली. आपने अपने आप को बिल्ड करा सो दैट आप अपने 30s में, अपने 40s में अपने बच्चों आप इतने रिसोर्सफुल हो जाओ कि आप अब जैसे आपके डैड हैं, he is a good friend of mine and I have seen him how he is grooming you. Right. जो आपका right time है, वो सारी आपको effort करते हैं, सारी facilities देते हैं. Right. And I can see his hard work's result and your hard work also. Yes. So आप ही तो example हो इतना अच्छा, आपके dad है ना, उन्होंने कितना अच्छा balance create किया है. I really think good about him that he's also very busy man, always busy with something, but he's taken good care to make you what and you're still becoming what you will become. Right. So that's how it is. Right. And आपकी वो बात से मैं बहुत रेजोनेट
करा। जैसे कि इनिशियली मेरे पापा और हमारे में ज्यादा हम बात रिलेशन नहीं था। हाँ नहीं था, क्योंकि पापा कनाडा रहते थे, हम यहाँ पे होते थे। एंड नाउ व्हेन आई नीड हिम द मोस्ट ही इज देयर। यस एब्सोल्युटली। हर काम छोड़ के मेरे वो पास आ आपकी जाएंगे। स्टेज ही नहीं थी कि आपके डैड आपके साथ उस तरह से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, आपको समझ भी नहीं आती वो स्टेज। यस एब्सोल्युटली। ओके, सो हमने जैसे बैलेंस की बात करी, हाउ अभी थोड़ा विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, ठीक है। आपकी जैसे लव मैरिज हुई है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट लाइफ पार्टनर फॉर अ पर्सन, फॉर अ विशियस पर्सन लाइक यू? What I feel is that first of all, the definition of love is not what is there in Hindi movies, for example. It's more of, you know, being best friends, being there for each other, right. uplifting each other, right. being a support system for each other. So love तो वो भी love भी ऊपर नीचे होता रहता है, different phases होते हैं love के, you know. So I feel the person who's with you has to be same as what you are going to be with them in terms of the balance of life. अगर आप professionally busy हैं, she will step up for kids. Okay. She is busy, I will step up for kids. I need some support. Right. Because आप partner से ही you know सारी बात कर सकते हैं, अपनी problems discuss कर सकते हैं. So that support should be there. You know. So it's, I would say that let's call it like being best friends. जैसे शाहरुख खान कहते हैं प्यार दोस्ती है। हाँ बिल्कुल, Exactly, दोस्ती, बेस्ट फ्रेंडशिप है। हाँ right. बेस्ट फ्रेंडशिप है, और वो आपको अच्छे से जानते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस को कैसे कम करना है और स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना कैसे बढ़ाना है, राइट। हाँ, So that's तो दैट इज द क्वालिटी एक लाइफ पार्टनर में इंसान आपके को पार्टनर में वो क्वालिटी होनी चाहिए। आप मतलब ग्रोथ माइंडसेट के साथ। हाँ, ग्रोथ माइंडसेट के साथ। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप थोड़ा बहुत जर्नी बता सकते हो आपकी और मैम की, हाउ कैसे मिले आप ये सब? So we met in college, we were studying together. Okay. And so in a couple of years we you know started dating and all. So it's been 23 years now. 23 years? Yes, okay. yes. Like initial school से लेकर अब तक? कॉलेज से लेकर अब तक। yes, yes. बहुत ups and downs के साथ। Right. Okay. But that's how life is. That's with every relation. Okay. तो जब ऐसे ups and downs आते हैं, कौन सी ऐसी फोर्स होती है जो आपको होल्ड करके रखती है? A workforce. You're busy with work and you want to achieve something in life. Okay. You know, that's your common goal. Okay. To be resourceful. देखो मैं एक सिंपल चीज समझता हूँ, मैं सक्सेस को मनी के साथ नहीं वे करता हूँ, रिसोर्सेज के साथ वे करता हूँ। सक्सेस क्या है कि मैं इतना केपेबल हूँ कि अगर किसी को मेरी ज़रूरत पड़ रही है और मैं एम्पैथ हूँ, मुझे मेरे दिल को अच्छा नहीं लग रहा कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं इस पोजीशन में होना चाहिए कि मैं उस पर्सन की हेल्प कर सकूँ बिना सोचे हुए। राइट? ये नहीं कि मैंने कौन सी गाड़ी ले ली या मैंने कौन सा घर बना लिया। दैट इज़ वेरी वेरी यू नो सुपरफिशियल। रियल सक्सेस वुड बी टू बी रिसोर्सफुल सो दैट जो चीज़ आपने करनी है आपके पास उसका टाइम हो। मेरे पास सोने का टाइम हो, मेरे पास अगर मुझे कुछ डेज वर्क नहीं करना उसका टाइम हो, मेरे पास लोगों की हेल्प करने का, मेरे पास कोई हेल्प के लिए आता है, क्या मैं केपेबल हूँ वो हेल्प करने के लिए कि नहीं? ओके, सो दिस इज व्हाट आई फील यू नो इज द रियल मीनिंग ऑफ being successful, as you can say. And very few people are successful. Very few people. People will, you know, sometimes when people get money, they think about things which they don't even need. You know, expensive stuff and all that. I think I would, अगर मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि जैसे suppose if you're not even that you know financially big deal, but आप अगर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे आपका 5,000 लगना है, तो खाना ही खाना ना 2,000 वाले में खा के 3,000 का किसी को कुछ बेचारे को महीने का खाना दे दो, किसी पुअर को आप, और आप देखो कि आपको कितना अच्छा लगेगा वो वन डिनर, जिससे किसी के 30 डेज भी निकल जाएंगे। एंड रियल लाइक हैप्पीनेस इज नॉट डजंट कम फ्रॉम मटीरियलिस्ट थिंग्स। आप तो बोर हो जाते हो, गाड़ी ले लिया आपने, 15-20 दिन में बोर हो जाओगे, है ना? लेकिन अगर आप किसी को दिल से अच्छा फील करवा दो, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आई रेड इट समवेयर एंड इट्स ट्रू। सो अगर एक रूम में हम दो लोग हैं, आप आई कैन सी दैट यू नीड, लाइक यू आर इन नीड ऑफ हेल्प, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो
you and I both will have our brains will release certain chemicals which are really, really good for your health. Right. But if there is a third person who doesn't know us and is watching, that you needed help and I helped you with nothing to get in return, उसकी body में भी वो chemicals release होते हैं and they are like strong vibration drugs, yes, like medicines जो कि you know body की health के लिए भी अच्छे हैं, and that's real happiness. That's what I feel. That right. No, that is a good thing. And I feel after a point na money doesn't matter, right? No. After a point after a point it doesn't matter. After a point goals matter. After a point yes matter. Okay. Like आप कुछ example दे सकते हो personal life के इस point के बाद money didn't matter, then you looked for your goal. नहीं, जैसे अभी मुझे लगता है कि मतलब ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट येस, बट ऐसे नहीं कि सिर्फ आप उसके आप वैल्यूज डेवलप करते हो धीरे धीरे. आपके और देखो एवरीबडी डजंट गेट इट. लाइक आई वांट टू रियली हेल्प पीपल, ट्रस्ट मी, एंड आई वुड डू समथिंग in coming time. I have a heart where I would want to make people do good. मतलब I'm in teaching also और मैं कर भी रहा हूँ. Like I'm teaching doctors and nurses world over, you know, many countries. और मुझे अच्छा लगता है जब कोई successful होता है जो मेरे से सीखा होता है. You know, that feeling is there. मतलब मैं ऐसा ही पर्सन हूँ कि आपने अगर अच्छा किया, आप मुझे जानते हैं, आप मेरे को कहीं ना कहीं अपनी सक्सेस दिखती है उसमें. मुझे अच्छा लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ यू ग्रो इन लाइफ एंड दैट्स व्हाई गॉड इज ऑलवेज काइंड. आई बिलीव इन गॉड लाइक 10,000%. और वो बिलीव करने के लिए आपको उन सर्कमस्टांसेस में होना पड़ता है जब आपको लग रहा था कुछ भी ठीक नहीं है और वो हेल्प करते जा रहा था. राइट. You know, I have felt it so many times in life that he's just so kind. Right. Okay, he's so kind. He blesses you and he blesses people who want to help others because it's through them he helps other people. Exactly. है ना? मेरा ना आपसे next question भी यही था कि like do you believe in God? Do you believe in spirituality? I believe in everything. Right. Astrology, astronomy, everything, because I believe that there are so many things which as human beings we are unable to perceive. We are just three-dimensional creatures. Okay, and there are so many things in this universe around us which we can't. So many energies are there. Definitely I believe. I definitely believe that when I'm sitting alone, I'm not sitting alone. You know, there is something going around us. Right. Yes. जैसे आप कह रहे हो कि जैसे हम 3-dimensional creatures हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कई बार हमें intuition होती है किसी चीज के बारे में, we don't know. So I believe that intuition is our you know ancestors in our DNA. Okay. They speak to us. Okay. They tell us. That's a different take. Okay. Because we are what our ancestors are, right? We are because everything matched at the right time. 2 people from such a long time met, then 4 people met, then you know it's a chain, and then here we are representing them. Everybody is in us. Right. They are living, you know, this physical existence through us now, and our kids will live through. Obviously. Yes. Okay. And कोई ऐसे लेसन्स, ऐसे आपके लर्निंग्स बिजनेस के रिलेटेड हो सकती है, मनी के रिलेटेड, रिलेशनशिप यू ऑलरेडी गिवन है, तो देखो मैं जैसे कुछ चीज़ें ये बिलीव करता हूँ दैट आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन बट आई हैव हाई नेटवर्किंग. सो आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक एवरी मंथ आई मीट सो मेनी पीपल. सो एक तो मैं ये बिलीव करता हूँ कि आई विल ऑलवेज सिट विद पीपल व्हेन आई हैव फ्री टाइम हु आर हाई वैल्यू पीपल. High value means that they have their ethics of not speaking about someone behind their back. Gossiping हो गया. Then they are talking about life goals and you know, or I'll be friends or sitting with someone who's probably 10 years elder to me, 15, and listen to their life stories. For example, है ना? तो मुझे अच्छा लगता है उनकी struggle सुनना, उन्होंने क्या achieve किया life में और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं इकट्ठे. ठीक है. Number 2, I feel that एक sense of gratitude ज़रूर होना चाहिए. Like I've really seen, like because I've met like a lot of people and from different backgrounds and different countries and all. अगर हमारा path cross किया और मैं या आप
हम एक दूसरे को ग्रेटफुल हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आगे जाके बहुत बिग करेंगे। ये मैंने देखा है, मतलब बहुत बार होता है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत अनग्रेटफुल लोग हैं, जब उनको लगता है कि आपकी उनको ज़रूरत नहीं है तो दे बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। एंड मेरे साथ ये भी बहुत बार होता है कि उनको मेरी ज़रूरत पड़ जाती है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, बट मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ कि मेरा जो वाइब्रेशन है, मेरी फ्रीक्वेंसी है, वो उनसे बहुत ऊपर है। सो मैं उनकी फिर भी हेल्प करता हूँ। बट ये मुझे पता लग जाता है, लाइक इफ़ यू आस्क मी नाउ, मुझे 10-15 मिनट किसी से बात करके पता लग जाता है कि उससे किस लेवल की बात करनी है। ठीक है ना, वो किस लेवल पे है, उसे मेरी बातें समझ आने वाली भी हैं कि नहीं। यू अंडरस्टैंड? अब उसके लिए तो मैं बेवकूफ़ी हूँ ना, लाइक उसके लिए तो मैं आई एम अ लिटिल बिट क्रेजी मे बी, है ना। एंड कई लोग मेरे से भी ऊपर सोचते हैं, एंड आई वांट टू बी दैट, यू नो। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं, लाइक नेटवर्किंग में, आई थिंक मुझे लगता है कि नॉट थिंकिंग ऑफ बिजनेस थिंग्स, बट पर्सनल रिलेशन, नेटवर्किंग, हैविंग ग्रैटिट्यूड, आगे जाके वो हेल्प करता ही है, मतलब देयर इज समथिंग। एंड देन एक और मैं चीज़ देखता हूँ, जैसे टू बी, इफ समबडी इज हेल्प्ड यू सम टाइम, तो उसके लिए जब उसको ज़रूरत पड़ती है, ऑलवेज बी देयर, ऑलवेज बी देयर, इट विल शो योर कैरेक्टर। मैं तो उसके लिए भी शो अप हो जाता हूँ जो नहीं होता ग्रेट। सो ये आपका कैरेक्टर है, ठीक है ना। सो ये कैरेक्टर बिल्डिंग और प्रोफेशनल और सोशल नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक लोगों के साथ, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट ठीक हो जिन लोगों का। तो अपने सर्कल में वैसे ही लोग लेकर आने चाहिए जिनका माइंडसेट। आते रहेंगे, आप नहीं लेके आएंगे, आते रहेंगे लोग। अच्छा। हाँ, आते रहेंगे, लाइक यू विल हैव दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। राइट, आप वैसे लोग अट्रैक्ट करते हो, डेफिनेटली। यस, आई एम सो ग्रेटफुल एज ऑफ नाउ एट दिस मोमेंट। तो पहले जैसे आप बोल रहे हो, अर्लियर आई वाज नॉट वेरी ग्रेटफुल। आपसे जब मैं आपसे मिला था ना, तो एट दैट टाइम बिकॉज आई वाज डूइंग साइंस, आई वाज डूइंग समथिंग व्हिच आई डिडंट, यू वर नॉट इन अ गुड फेज मेंटली, नॉट इन अ गुड फेज मेंटली, तो मेरे से अट्रैक्ट भी वैसी चीजें हो रही थी। नाउ आई एम इन अ वेरी गुड कंफर्टेबल गुड फेज। तो आई एम मीटिंग अमेजिंग पीपल लाइक यू, और जैसे जो भी लोग अभी तक पॉडकास्ट में हैं, बहुत एक अच्छी एनर्जी, वाइब्रेशंस मिलती है, अट्रैक्शंस। जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप अच्छा करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली सब अच्छा ही होगा। और मैं अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में फ्यू इयर्स बैक, मे बी 8 to 10 years बैक, मैं सोचता था कि सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है, मतलब ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करना, ये बचना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, राइट। लेकिन अब मैंने अपने आप को छोड़ दिया है, सरेंडर। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि गॉड इज देयर, ही विल टेक केयर, आई नो इट, इट्स लाइक दिस। उसने तो मतलब वो तो है ही है, वो तो कुछ लेसन दे रहा है किसी चीज़ में, और उसने वो तो बैठा ही हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जस्ट लिव योर लाइफ, एंड जस्ट लिव योर लाइफ एंड बी ऑफ यूज or help to society as much as possible. Right. That is important. Like I believe in the law of attraction a lot. और काफी बार podcast पे बात कर चुका हूँ। अच्छा। कि I'm feeling this change recently only. कि मुझे जो भी answers चाहिए होते हैं ना, I meet. You will get it. Yes. और लोग वही चीज बोल देते हैं। कई बार ड्रीम में भी आ जाते हैं। हाँ, कई बार ड्रीम में भी आ जाते हैं। Yes. Okay. So there's one question. This is a personal question. A person. जैसे you are very ambitious, right? I feel I am also very ambitious. Yes. So a youngster like me who is very ambitious about his goals, वो how should he look into the future कि किस mindset के साथ जाना चाहिए? Simple सा आंसर देता हूँ आपको। हाँ जी। So in life there are two ways how you will learn things. Okay. एक तो खुद गलती करोगे और सीख जाओगे। फर्स्ट टाइम गलती करो, सीख जाओ, वेरी गुड। एक और स्मार्ट लोग होते हैं, वो आप ऑफ कोर्स जब चीज़ें सीखोगे तो आपके कुछ टीचर्स होंगे या मेंटर्स होंगे। वो लोग मेंटर से उसकी गलतियां सीख लेते हैं कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। और अगर आप इस चीज़ पे केपेबल, सपोज मैं किसी के पास जाता हूँ सीखने, या कोई मेरे पास आता है, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, सो मेरा एम क्या होगा, मैं ये पूछ लूँ इससे कि क्या नहीं करना, ठीक है, क्या ना करूँ, क्या अवॉइड करूँ। मुझे खुद एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रिक शॉक लेने की जरूरत नहीं है। राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल
आपने कार चलानी है तो आपने सीखा हुआ कि सीट बेल्ट चलानी है, स्पीड ठीक चलानी है। एक्सीडेंट करके सीखे और टांग तुड़वा लिए तो क्या सीखे आप? एग्जैक्टली, उससे क्या फायदा? सो आई फील कि जितना हो सकता है आप किसी को you choose a right person to be your guide, and then learn from them, and the right guide will also not make you like him or her. They will also push you to push your boundaries. लेकिन I have a very strong feeling कि this should be the mindset, and of course discipline तो होना ही चाहिए, ठीक है ना? So this is the important thing that as a youngster you should. और अपने देखो, और एक और भी चीज़ है आपको, जैसे because as a youngster we have a very fragile mind. हमें कभी कुछ अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है. मैं भी स्टेज में. Yes, लेकिन ये टाइम है जब आप उसको शॉट दे सकते हो. शॉट दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, और अगर कोई चीज़ में भी वर्कआउट नहीं करती तो आप जो और कुछ अच्छा लग रहा है उसको ट्राई कर सकते हो. बहुत बड़ी लाइफ है. और सक्सेसफुल करने के लिए, क्लिक होने के लिए आपको सालों नहीं चाहिए. मे बी इन अ मंथ इफ यू डू समथिंग राइट, वो क्लिक कर जाएगा, है ना? तो ये अपॉर्चुनिटी हर ह्यूमन बीइंग को मिलनी चाहिए ना. ये तो नहीं होना चाहिए कि ऐसे ही स्कूल करो आप, ये फिजिक्स पढ़ो, ऐसे ऐसे करो, फिर आप ये करो, ये मतलब वो फिर आप जस्ट आप एवरेज ही चलोगे. राइट. आई फील ये तो राइट होना चाहिए कि आपको अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करने का. और जो लोग लकी होते हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है. आप मेरे को एक एग्जांपल दो, आप भी क्रिकेट खेलते हो. आपने देखा है कि क्रिकेट में कितने लोग ऐसे हैं, दे हैड नथिंग, दे वर नथिंग, दे हैड नो मनी फॉर फूड ऑल्सो, राइट? बट वो करें ना, अच्छा करें, बिकॉज वो हंगर है ना. अगर आप कंफर्टेबली बैठ जाओगे तो वो आपके अंदर 100% हंगर नहीं आएगा. कल मैं एक वो देख रहा था, उसमें ही वाज सेइंग दैट वन गाय वाज देयर, ही आस्क्स हिम कि व्हाट वर्क डू यू डू, सो ही सेड आई सेल कार्स. अच्छा, तो कितनी कार बेचते हो आप? तो कहता मैं 20 बेचता हूँ 1 मंथ की. तो कहता अगर मैं आपके बच्चों को किडनैप कर लूँ और आपको रैंसम के लिए बोलूँ कि 50 कार्स बेचो, तो बेच लोगे? कहता हाँ बेच लूँगा. सो कहता ये आपकी है ना इनएबिलिटी, या आप अपने अंदर वो स्टिमुलस नहीं लेके आ पा रहे ना. सो ये भी मुझे क्रिकेट का फायदा हुआ दैट आई हैव अ वेरी लाइक विनिंग वाला, यू नो. सो समटाइम्स आई फील कि कई बार मैं खुद नहीं कर रहा होता, मेरे अंदर ही ऐसे है कि मुझे जो करना है वो बहुत अच्छा करना है, बेस्ट करना है. सो ये बात हर पर्सन अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता कि कई लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं प्रोफेशनली कि किडनैपिंग हुई हुई है और उनको 50 कार्स बेचनी है, लाइक जस्ट अ कोट. और कई लोगों को कुछ फर्क ही नहीं है, उनको 20 करना है. अच्छा, 2 भी बिके महीने. तो ऑफ कोर्स काफी कॉमन लोग तो आपको नहीं समझ पाएंगे ना प्रॉपर्ली. राइट और नॉट? ऑब्वियसली राइट. ये बहुत सही लगा मेरे को. सो दिस इज द थिंग. यस. तो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपने कौन सी ऐसी 3 गलतियां करी है जो आप चाहोगे कि बाकी ना करें? और अ पर्सन लाइक मी, 3 गलतियां कैसी की हैं? एक्चुअली मैं वेरी डिफिकल्ट टू से क्या गलतियां की हैं. इट कुड बी इवन वन थिंग. जैसे कुछ लोगों ने पॉडकास्ट पे बोला कि दे डिडंट लर्न अबाउट फाइनेंसेस, समथिंग लाइक दैट. अगर आपको एक्चुअली मैंने भी फाइनेंसेस के बारे में नहीं सीखा, बट मैं गलती नहीं मानता बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है. अच्छा. अगर मैं वो चीज़ सीखना मतलब ज़्यादा डीपली जाता तो मेरा काम से ध्यान हट जाता. मैं 100% फोकस्ड ऑन वर्क काइंड ऑफ पर्सन. आई थिंक मे बी आई वुड से दैट आई हैव नाउ इट्स चेंज, बट आई हैव बीन अ वेरी एग्रेसिव पर्सन इन टर्म्स ऑफ also not accepting bullshit, you know, from people. Okay. So अभी मैं मतलब जो मुझे ठीक बिहेव नहीं होता है, मैं उनसे बात ही नहीं करता हूँ. मतलब I get aside because I'm a little bit scared of myself that I would not behave right. But पहले मैं थोड़ा सा मतलब bullshit नहीं accept करता था, which is not right. I should not have reacted. For example, in certain situations. But it's my sort of trait. Being you know, you've seen Virat Kohli cricket में, है ना? तो हम cricketers हैं तो हम थोड़ा समझते हैं to win spirit and not take bullshit from anyone. I think ये थोड़ा मुझे लगता है कि कोई भी person इतना important नहीं है कि मेरे को trigger कर सके. Okay. So that if somebody is behaving like this, they are out of my sort of, you know, they're gone. मतलब पहले आप रिएक्ट करते थे, नाउ यू जस्ट आई डोंट रिएक्ट नाउ. और मैंने काफ़ी मतलब लाइफ में ग्रोथ भी शुरू में
इस गुस्से से भी मतलब जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे कि कई लोग पीठ पीछे मजाक करते थे कि ये जो चीज़ कर रहा है कुछ नहीं होना, मतलब ये क्या चीज़ें हैं, इट्स नथिंग, यू नो, एंड आई वुड फील एंग्री एंड से कि मैं बताऊंगा इनको, है ना, बट नाउ आई फील कि वो तो अपने मन से मुझे बनाना है, मुझे क्या करना है, और गॉड साथ में चल रहा है, साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा, मैं जी नहीं, you have to like you can say as much you say that you believe in God, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता आपको गॉड का, राइट, जब आपको पता है यू आर डाउन एंड आउट और गॉड फिर भी हेल्प कर रहा है, तो ही आप बिलीव करते हो। तो मैं बड़ा फ्री घूमता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि गॉड तो है या तो वो लेसन दे रहा है किसी चीज में, है ना, और लेकिन वो साथ चल रहा है, वो मुझे मतलब गाइड कर रहा है, मुझे यू नो प्रोटेक्ट कर रहा है। यू नेवर नो हाउ मेनी circumstances were created in a day to destroy you. You would never know, because he is there, right, protecting you, actually, है ना? wow. This is how I feel. This is amazing. It's so beautiful to think, you know, and even more beautiful जब आप वो चीजें feel करते हो और आप मानते हो कि because आप experience कर चुके होते हो, right? मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि होता भी है जब भी I'm feeling down, तो I know कि यार चीजें ठीक हो जाएंगी, बस मुझे अभी के लिए बुरा लग रहा है, बट गॉड इज देयर टू हेल्प मी आउट। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट के लिए, और आई एम होपिंग कि हम बहुत सारे टॉपिक्स पे क्रिकेट पे करेंगे, क्रिकेट पे करेंगे सबसे पहले तो वेरी सून इट विल कम ऑन क्रिकेट, फॉर श्योर। ओके, सो थैंक यू सो मच भैया, मोस्ट वेलकम पॉडकास्ट पे, मोस्ट वेलकम, बहुत मजा आया, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चंस आल्सो, थैंक यू सो मच। तो आप कुछ एंडिंग नोट कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बस आई एम थैंकफुल टू विशव, आई थिंक ही इज गोइंग, आई मीन डू सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल एंड ऑल द सोशल मीडिया चैनल्स, आई थिंक ही इज गोइंग द राइट वे, एंड आई वुड लव टू सपोर्ट द काइंड ऑफ mindset he has, you know. Thank you so much. And to all of you, we've spoken at length about everything, but still do how you have to do. Right. Everybody doesn't have, like, there is no specific route that you have to take, but be true to yourself. एंड बी अ नाइस पर्सन। हम एटलीस्ट ये कर सकते हैं, नाइस होने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, राइट? ऑब्वियसली जो चीजों के पैसे नहीं लगते एटलीस्ट वो तो अच्छा कर लो, वो तो अच्छा कर ले। एब्सोल्युटली। ओके, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।